हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया कर रहा है हिस्ट्री को रिपीट। आफ्टर 815 से 850 साल बाद भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, जो मतलब भारत की क्या दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी इज बैक गाइस, वापस आ गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब इस यूनिवर्सिटी को खत्म हुए 800 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये सबसे दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, जो कि भारत के बिहार के अंदर थी भाई। और ये अशोक गुप्ता अंपायर के अंदर थी ना भाई, जिसको थी मतलब आचार्य चाणक्य लोगों के टाइम पे। हाँ भाई, तो ये गाइस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना अगर हम गलत हुए हों। तो फाइनली वो यूनिवर्सिटी वापस आ गई है। मोदी जी का वीडियो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन आज उद्घाटन हुआ है, तो स्टार्ट। उद्घाटन हुआ है भाई आज। India has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and educational renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहाँ, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें साल पहले उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। Recognizing its historical significance and potential to contribute to global knowledge, Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The Net Zero Green campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs that integrate traditional wisdom with contemporary challenges. It serves as a bridge between the past and the future, promoting peace, understanding, and sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwa Bandhu, a friend to the world. Nalanda University stands as a symbol of India's enduring legacy of knowledge and innovation. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, its revival is not only a national achievement but a gift to the world, reaffirming the timeless value of education and the quest for knowledge. Join us in celebrating this renaissance of learning as Nalanda University continues to illuminate minds and inspire generations to come. नालंदा यूनिवर्सिटी, वाह यार भाई, क्या बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। दुनिया के कई देशों के स्टूडेंट इतिहास फिर से रिपीट किया। G20 हुई थी तो पीछे तस्वीर लगाई थी, जब लीडर्स आते थे पूछते थे क्या मतलब, क्या मोदी जी कहते थे 1500 साल पहले, 1500 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी थी,
और हम मतलब दुनिया, जब यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी दुनिया को नहीं पता था, भारत में पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी बनी थी। आप अंदाजा लगाओ भाई उस टाइम का लेवल 1500 साल पहले, 1500 साल पहले यूनिवर्सिटी। फिर कुछ टाइम आक्रमणकारी आए भारत में, उन्होंने लूटा शूटा, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी, मतलब उसके बाद देखो अब आज क्या हुआ, और आज फिर से वो हिस्ट्री रिपीट हुई है। यार भारत ने मुझे एक बात इंडियन गवर्नमेंट की अच्छी लगती है, अपने जो इतिहास है भूलती भी नहीं है और उसको जिंदा करके रखते हैं। हमारे देखो एक तक्षशिला और नालंदा, ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, मतलब इधर टैक्सला में हमारे करीब है, इधर से हमसे 40-45 किलोमीटर दूर है वो यूनिवर्सिटी है। अगर हम चाहते तो उसको भी हम रिवाइव कर सकते थे। एक साझा इतिहास है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये हमारा साझा इतिहास है, वो अलग बात है। अब हम लोग ये इतिहास भूल गए हैं, हम मतलब इंडिया के साथ अपना मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये इंडिया का सारा इतिहास था, हम भी उसी का हिस्सा था, हम भी इकट्ठे थे ना, लेकिन आज उसकी हालत देख लो। और इंडिया में वही और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इंडिया किस तरह प्रिजर्व करके रखा है और हम खराब करते जा रहे हैं, ये फर्क है। ये साझा इतिहास था हमारा, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बेशक यार जो भी था, लेकिन अपना साझा इतिहास पाकिस्तान, बेशक इसको क्या कुछ देखो इस यूनिवर्सिटी में नहीं बनाया, मतलब लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, और भाई 9 मिलियन बुक्स थी जिसको कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। मतलब अभी तो अगर उस टाइम 9 मिलियन होंगी तो अभी तो मेरे ख्याल से और भी डालेंगे, अभी तो बड़ी दुनिया करोड़ों होंगी। हाँ, अभी दुनिया की हर बुक डाली जाएगी इधर, आपको पता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना का एक एम्परर था, वो भी उसने भी इसके बारे में बोला था। और भाई पूरी दुनिया से उस टाइम लोग पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी, और अब भी आएंगे, अब फिर आएंगे, और अभी जिस तरह मुझे लग रहा है इसके अंदर गुरुकुल की अलग मिलेगी। मैं अभी बोलने वाला था, मेरे जहन में ये बातें आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बोलने वाला था हिंदुइज्म की टीचिंग भी मिल सकती है आपको, बुद्धिज्म की भी मिल सकती है। बिल्कुल, तो मतलब मैं ये बोलने वाला था कि यार अलग अलग जो है ना, इनको इसी तरह जो है ना, बुद्धिज्म का भी काफी इतिहास है, तो मतलब भाई उधर भी मतलब उसके साथ ये अलग अलग ये टीचिंग जो है इनको मिलेंगी। मैं भी यही बोल रहा था, और टीचिंग मिलेंगी भी, और दूसरी बात ये कि मॉडर्न जो एजुकेशन है वो मॉडर्न मिलेगी, हर तरह की बड़ी से बड़ी फैसिलिटी इसके अंदर मिलेगी। और मुझे एक लगता है एक टाइम पे ये इस लेवल पर चली जाएगी कि पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल होगी, जिस तरह के इसको। और यार बिहार में बनी है, यार बिहार देखो वो एक हिस्टोरिकल जगह, वो अभी खराब हो गया, लेकिन फिर से बिहार अभी ग्रो कर रहा है। और बिहार अब बदलेगा, मुझे लग रहा है बिहार बदले, लोग जितने बदल रहा है, बल्कि बदलेगा नहीं, बदल रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है गाइस? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं, कैसा फील कर रहे हैं नालंदा को वापस पाने के बाद? कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।